Hello students, I Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about 8th class chapter 7, A Visit to Cambridge, part 2nd of it. As you know that in our previous video we have discussed about the first part of this chapter, in which we have discussed that इस chapter में दो prominent personalities के discussion को highlight किया गया है. First is Howard and second one is Mr. Firdaus Kanga. Clear? So both the persons are having a disability in their body. Differently they are disabled. Differently disabled, that means they have disability, but even then they are having a successful career. They have a successful life ahead. One of the person, the Howard Stephen, was one of the most prominent scientists of the world, and who can be considered as a successor of Newton in Cambridge University. Second one is Howard, the Kanga, Mr. Kanga, the Firdaus Kanga. Firdaus Kanga is one of the most prominent writer and reporter in Indian magazine and all. Okay, so we have find that in our previous video we have discussed that in this chapter Mr. Kanga was visiting to Cambridge, and his guide told him about Mr. Howard, and he got impressed by him and he wanted to meet with him, and finally he was able to meet with him. And what kind of discussion happened between, in the very starting they have a discussion. He was completely impressed by the personality of that man. He find that Mr. Howard was not able to speak, and he have to tap on the only his finger, and one part, for half part of his face was working, and rest of the body was suffering from paralysis, and because of that reason he have to be in wheelchair. And same thing was there with Mr. Kanga, because he was also suffering from he was having a differently disability that is related with the bones, and if he slightly moved his arms and legs, the bone can be broken out. The bone was so delicate, and because of that reason he also have to be in the wheelchair. Okay, so what kind of discussion happened between you, आप उसको वीडियोज़ में देख लीजिएगा प्रीवियस वाली में. So let's start with this one. Before you light the lantern. अब ये जो सीन है ये तुरंत उस पोर्शन के बाद है जब उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में वो डिस्कशन कर रहे होते हैं. फिरदौस अपने इस राइटअप में वो बताते हैं कि हिज इंटायर, उसका जो एक चेहरा है जो एक कंधे के एक हिस्से की तरफ मुड़ा हुआ है, एंड हिज हाफ फेस वॉज ओनली वर्किंग. वो एक हल्की सी टेढ़ी स्माइल के साथ अपने फेस एक्सप्रेशन को शो करते हैं. सेकेंड, उनका जो एंटायर बॉडी है वो ऐसा हो रहा है कि वो जैसे वो श्रंक हो गया, यानी कि सिकुड़ गया है. उन्होंने ब्लू कलर की कोई शर्ट डाली है, एंड इट सीम्स लाइक उनकी जो एंटायर बॉडी है, उनकी बॉडी वैसे होने के बावजूद भी उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो करेज है, इट वाज लाइक अ लालटेन. लालटेन होता है कि जो जैसे हम लालटेन बोलते हैं ना, वो. बिफोर यू लाइक अ लालटेन हुज वॉल्स वर वोन सो थिन you glimpse only the light inside. So exactly what he said, that he was having a light inside him. What kind of light inside? A light is a kind of when the person having a very successful, and he was very prominent from, he was different from other person, it's shine like a light. Correct. And because of that reason he Firdaus Kanga compared Howard with Larden. Okay, is that in descendants of a man, in descendants the body almost irrelevant, exists only like a case made of shadow. Okay, वो कहता है कि उनकी जो पूरी बॉडी है वो तो completely एक शेडो के जैसा है. दैट मीन्स इट्स completely possible or not, but his personality and his aura was that he was very different, and he shine like a lantern inside the whole society. क्लियर. उनके काम ऐसे हैं कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया है, चाहे उनकी फिजिकलिटी के अकॉर्डिंग वो उतने प्रोमिनेंट नहीं हैं, लेकिन उनके जो काम है, उन्होंने उनके काम के कारण ही वो शाइन लाइक, ही वॉज शोइंग डिफरेंट फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम अदर सोसाइटी मेम्बर्स. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उन्होंने उनको लार्टन की तरह के साथ कंपेयर किया है.
so that non-believer in external soul know that this is what each of us is. Everything is as else an accessories. सॉरी. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इन चीज़ों को देखकर उसको एक चीज़ समझ में आती है फिरदौस कांगा को कि उनको लगता है कि ओनली द माइंड इज़ दैट पोर्शन, बिकॉज जो मिस्टर हार्वर्ड हैं उनका माइंड बहुत शाइनफुल है, उनके जो उनके बॉडी वॉज नॉट एबल टू वर्क दैट मच, लेकिन उनका जो माइंड है वो इतना पावरफुल है कि वो बाकी सारी चीज़ों में, बाकी सारे ह्यूमन बींग्स में अपने आप को एक अलग शाइन कर रहे हैं. तो वो यहाँ पे कहते हैं कि दिस इज़ वट ईच ऑफ अस इज़. हम सारे जो हैं वो ऐसे ही हैं, सबके पास एक माइंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको अलग दिखाता है बाकी लोगों से, और बाकी एवरीथिंग इज़ एल्स इज़ एन एक्सेसरीज. जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, ये सारी चीज़ें तो एक एक्सेसरीज यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें खूबसूरत बनाता है और हमारे लिए कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं. लेकिन अगर हमारा माइंड उतना परफेक्टली है देन वी कैन शाइन फ्रॉम एनी अदर सोसाइटी मेम्बर्स. हम अपने आप को अलग से शाइन करके दिखा सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन आएगा व्हाई डिड ही सेड दैट एवरीथिंग इज एल्स इज एक्सेसरीज. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जो हाथ पैर और आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक एक्सेसरीज की तरह हैं आपके साथ. एक्सेसरीज होता है कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके पास है. क्लियर? बाकी जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है आपका माइंड. आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव है, या आपका माइंड कितना शार्प है, आपका माइंड कितना वर्क करता है चीज़ों को लेके. दैट थिंग्स ओनली मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी. ओके, व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल? अब वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है. आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उससे क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको डिसेबल होकर कैसा लगता है. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल. दिस इज़ द आंसर ऑफ हार्वर्ड. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड. वो कहता है कि एक चीज़ बस आपको पता चलती है डिसेबल होने के बाद कि लोगों में कितनी काइंडनेस है. सिंपल है कि जब हम अपने सामने कुछ ऐसा डिसेबल पर्सन को देखते हैं तो एक सिंपैथी हमारे माइंड में अराइज हो जाती है. करेक्ट? तो वो कहता है कि सिर्फ एक चीज़ है जो हमें अलग जो डिसेबल होने के बाद एक चीज़ सिर्फ अलग लगती है, दैट इज़ कि आपको ये पता चल जाता है कि लोगों के वर्ल्ड में कितनी काइंडनेस है. येस, ही सेड इट वाज डिसएडवांटेज ऑफ दिस वॉइस synthesizer that could convey no inflection, no shades. अब देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जो अपनी बातों को कह सकता है. तो मान लीजिए अगर उसको एंगर है तो अपनी टोन में वो एंगर को शो कर सकता है, अगर वो हैप्पी है तो अपनी टोन में वो हैप्पीनेस को शो कर सकता है. लेकिन जो हार्वर्ड है उनके साथ एक प्रॉब्लम है. उनको सिर्फ ये लगता है कि मैं अपने इमोशंस को शो नहीं कर सकता, अपने शेड्स को शो नहीं कर सकता. इन्फ्लेक्शन मतलब मैं अपने उन चीज़ों को शो नहीं कर सकता. इन्फ्लेक्शन करना मतलब शो करना. ठीक है. सिंथेसाइज़र जो हिज वॉइस सिंथेसाइज़र होता है कि वैराइटीज़ ऑफ. अब जैसे क्योंकि वो उनका जो वॉइस है वो क्या मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्या करता है, वो अपने फिंगर से टैप करता है कंप्यूटर के उस बटन पे, एंड वो जो कंप्यूटर है उस वॉइस में कंप्यूटर की जो वॉइस है वो बोलती है. करेक्ट? अब यहाँ पे कंप्यूटर में इमोशंस नहीं है तो वो एंगर में बोल रहा है या फिर वो सैडनेस में बोल रहा है या फिर वो हैप्पीनेस में बोल रहा है, वो टोन बिल्कुल सेम ही आएगी. लेकिन अगर एक ह्यूमन बीइंग बोलता है तो वो अपनी टोन में, अब जैसे अगर हम बोलते किसी को गुस्से में बोल रहा तो हम कहते हैं रुक जाइए, तो उस तरह से तो एक वेरिएशंस आती हैं, वो यहाँ पे नहीं आती. ठीक है, बस उसको ये प्रॉब्लम है. नेक्स्ट है, then he said, and I could not tell the enthusiastically he agreed with me and I could not tell, मतलब मैं भी जोश से अपने आप को नहीं बता सकता. अब यहाँ पे फिरदौस कहते हैं कि मैं भी जोश से ये नहीं बता पाता हूँ कि जो मैं उससे एग्री करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्योंकि अब फिरदौस तो बोल सकते हैं. करेक्ट? वो अपनी एबिलिटीज़, वो अपने इमोशंस को शो कर सकते हैं, लेकिन जो हार्वर्ड है वो शो नहीं कर सकते. क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही डोंट लाइक इन बीइंग अ डिसेबल. ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मिस्टर हार्वर्ड जो नहीं हो सकता उनके डिसेबल होने के बाद, कौन सी कमी उनको अपने में फील होती है. वो उनको सिर्फ ये लगता है कि ही इज़ नॉट एबल टू शो हिज इमोशंस बाय हिज वॉइस. Clear? This is the disability he feel in himself. Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time. अब वो कहता है कि क्योंकि उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने क्या बोला था कि आपको सिर्फ आधा घंटा मिलेगा, सो
किस तरह से वो बार बार क्या कह रहा है, बार बार मैं अपनी जो हाथ की घड़ी में अपने टाइम को देख रहा हूँ. आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट काउंट. वो कहता है कि मैं चाहता था कि मेरा जो 30 मिनट्स का जो टाइम है वो एक एक मिनट को मैं फ्रूटफुल करूँ, मैं एक एक मिनट में कुछ ऐसी चीज़ें पूछूँ, मैं ऐसी चीज़ें कुछ सीखूँ उनसे जो कि मुझे इंस्पिरेशन दे. क्लियर. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी. अब उनको क्या लगता है, बीइंग उनको देखकर, जो हार्वर्ड है उनको देखकर उनको लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील करता हूँ कि एटलीस्ट मेरी बॉडी में कुछ पार्ट्स हैं जो वर्क कर सकते हैं, मैं अपने इमोशंस को शो कर सकता हूँ, वो थोड़ा सा रिलीव्ड फील करते हैं. ठीक है. हाउ लिटिल इट मैटर देन वुड नेवर वॉक और स्टैंड. वो कहता है वो कितना इतना कोई मैटर नहीं करता कि मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊँगा, मैं कभी चल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ चला सकता हूँ, अपने हाथों की मूवमेंट कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं. तो वो इसको देखकर जो मिस्टर फिरदौस कांगा है उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा रिलीव्ड हूँ कि काश, थैंक गॉड मेरे पास वो चीज़ें हैं. ठीक है. आई टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड द क्लिंच ऑफ फॉर मी. क्लिंच होता है कि एक फ्रेज़, एक छोटा सा स्टेटमेंट. वो कहता है कि आप एक बहुत ही अलग सा एक उदाहरण है मेरे लिए. क्लिंच मतलब एक छोटा सा उदाहरण होना. एंड श्योरली फॉर अदर्स. वो कहते हैं इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिंच. वो कहता है कि मेरे लिए आप एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन पर्सन है. श्योरली फॉर अदर, और औरों के लिए भी. डिड दैट थॉट हेल्प हिम. और हो सकता है कि आपको देखकर उनके अंदर वो थॉट आए कि वो कुछ, जैसे अगर आप लोग कुछ कर सकते हो देन एनीबडी कैन डू एवरीथिंग. ओके, सो यू आर डेफिनेटली इंस्पिरेशन फॉर अदर पर्सन्स. नो, ही सेड नो. आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क व्हेन योर बॉडी इज claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with the admiration to see you breathing still. अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस्टर हार्वर्ड है वो बोल रहे हैं. कहते नहीं, मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता. अब उनको क्या अच्छा नहीं लगता. वो कहता है ही सेड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क. कितना अजीब लगता है, कितना बेवकूफ़ी वाला वो ये क्वेश्चन वाला लगता है कि व्हेन योर बॉडी इज़ क्लास्ट्रोफोबिक. क्लास्ट्रोफोबिक होता है कि ऐसा एलिमेंट जब आपका दम घुटने लग जाता है. ठीक है. ओके. आपका जो बॉडी है वो क्लास्ट्रोफोबिक रूम जैसा है, यानी कि एक ऐसा रूम है जिसमें आपका दम घुट रहा है. ठीक है. एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय. और आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है. इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर. अब इसको देखकर भी तब भी ये फील नहीं, तब भी अच्छा नहीं लगता कि बाकी लोग जो हैं आपको देखकर एक स्माइल करते हैं कि हाँ अभी भी आप सांसें ले रहे हो, इतना सब होने के बावजूद भी आर स्टिल ब्रीदिंग, आप अभी भी सांस ले रहे हो. तो इसको देखकर अच्छा नहीं लगता. Is there any advice you can give disabled people, something that can might help them life better? तो फिर दोस्त उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप कोई एडवाइस देना चाहते हो. They should be constructed, concentrate on what they are good at. तो यहाँ पे वो कहता है कि बट मैं सिर्फ एक एडवाइस देना चाहता हूँ डिसेबल पर्सन को कि उनको सिर्फ उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि जिसमें वो अच्छे होते हैं. जैसे हर कोई एक डिसेबल पर्सन होता है, कोई ना कोई एक क्वालिटी डेफिनेटली उनके अंदर होती है. तो वो कहते हैं आई थिंक दैट लाइक डिसेबल ओलंपिक आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. अब यहाँ पे जो हार्वर्ड है वो कहते हैं कि डिसेबल ओलंपिक्स जैसे कुछ इस कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है. ओके. सो यहाँ पे फिर नेक्स्ट फिर दोस्त उनसे फिर क्वेश्चन पूछते हैं. देन आई नो व्हाट यू मीन. आई रिमेंबर द ईयर आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज. अब यहाँ पे फिर दोस्त उनको अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली एग्री करता हूँ क्योंकि एक बार मैंने भी गिटार बजाने की कोशिश की, गिटार सीखने की और बजाने की कोशिश की थी विच इज़ लार्जर देन माई साइज एंड आई वॉज ग्लीफुली होता है वेरी हैप्पीली. आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट. लेकिन मैंने एक दिन उसको तोड़ दिया था. द हाफ आवर वॉज अप. अब आधा घंटा हो गया था. वो कहता है आई थिंक आई हैव इनॉयड यू इनफ. आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर. अब यहाँ पे अब उनका आधा घंटा हो चुका था तो उनको लगता है कि अब मुझे, उन्होंने कहता कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया तो इट्स बेटर कि मैं अब चला जाता हूँ. सो वो कहता है आई सेड ग्रीनिंग मतलब तो फॉरवर्ड करना या
बाय करना या ग्रीट करना किसी को, ठीक है। थैंक यू, आई वेटेड, हैव सम टी, आई वेटेड, स्टे, आई वेटेड। वो कहते नहीं नहीं, आप अब यहाँ पे हावर्ड उनको बोलते कि ओके नहीं रुको, मैं देखता हूँ, हैव सम टी, थोड़ी चाय होता है, आई कैन शो यू माई गार्डन, और वो उनको गार्डन दिखाते। द गार्डन वॉज बिग एज अ पार्क बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच। अब वो बहुत बड़ा था लेकिन उन्होंने अपने व्हील चेयर पे उसको मूव करते, क्योंकि वो मैकेनिकली मोटर था, ठीक है, मोटराइज्ड व्हील चेयर। अब वो अपने मोटराइज व्हील चेयर पे पूरे उसमें एक एक कोने में गए। आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे, मैं भी पूरे रास्ते में उनके साथ चला। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, वी कुड नॉट, अब क्योंकि वो चल रहे थे, क्योंकि उनका जो एक हाथ था वो क्या हो रहा था, वो व्हील चेयर को टर्न करने में ही जा रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उन्होंने उस ड्यूरेशन में बातें नहीं की। क्लियर? Then the sun made him silent and the letter on his screen disappearing in the glare. अब reason क्या था, वो क्यों बातें नहीं कर रहा था? Because the sun made him silent. sun क्यों? क्योंकि जो sun की जो रेज थी वो उनकी स्क्रीन पर पड़ रही थी एंड इट वॉज नॉट विजिबल। स्क्रीन जो है वो अगर जब तक वो चीज़ें स्क्रीन पर नहीं आएंगी, स्क्रीन पर विजिबल नहीं होंगी, तो वो जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं, वो निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो स्क्रीन पर जो वर्ड्स आते थे वो उन्हीं को रीड करता था, और जो हॉकिंस हैं वो भी उनको पढ़ नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने वो बात नहीं कही। क्वेश्चन आएगा, वाई दे आर नॉट हैविंग अ डिस्कशन व्हेन दे आर मूविंग इन द गार्डन? द रीज़न इज़ बिकॉज he was not able to see the things which he was tapping on the screen. क्लियर? वो स्क्रीन पे वो चीज़ों को टैप करके जो देख नहीं पा रहा था, और अगर स्क्रीन पे क्लियर नहीं हो रहा था तो जो आवाज़ है वो भी उसमें से क्लियर नहीं आएगी, ठीक है। सो और वो रीज़न क्या था? बिकॉज द सन रेज कम्प्लीटली ब्लैंकिंग द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट, एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव। एक घंटे बाद हम वी आर रेडी टू लीव, हम चलने के लिए तैयार थे। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, आई टच्ड हिम। अब देखो यहाँ पे वो एक बोलता है कि आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनको अलविदा कैसे कहूँ। आई कुड नॉट, मैं उनको किस नहीं कर सकता था और रोना नहीं चाहता था। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। अब वो कहते हैं कि मैं उनसे एक घंटे बाद व्हेन आई स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस, I want to kiss, I cannot kiss her and kiss him, or I could not cry in front of him, but he said that I just walk with my wheelchair in summer. I looked back and I knew he was waving. मैंने देखा, मैं देखा कि मुझे लग रहा था कि वो वेव करेंगे, यानी कि वो बाय बाय कर रहे होंगे अपने हाथ से, बट दो ही वॉजेंट, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। वॉचिंग हिम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, उनको देखना ही मेरे लिए एक बहुत ही बहादुरी वाला काम था। रीज़न क्या है उस चीज़ का? बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग फॉर हिम टू मीट विद हिम। उनके लिए एक अपनी लाइफ का अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस था उनसे मिलना। सो द वन वॉज मूविंग टूवर्ड्स the one I had believed in so far many years alone. I knew that my journey was over for now. वो कहते हैं कि इनको देखने के बाद मुझे अब इतना तो पता चल गया कि अब मुझे इससे ज़्यादा बेटर और इससे ज़्यादा लर्नेबल थिंग कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी लाइफ में, और मेरी जर्नी उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मेरी जर्नी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सो इस तरह से वो वहाँ से सीधा वापस इंडिया आ जाते हैं। तो दिस इज़ द एंटायर स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें पूरे चैप्टर में क्या समझ में आता है कि जो फिरदौस कांगा है वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि समझ में आती हैं मिस्टर हॉकिंस के बारे में, दैट ही वॉज वेरी मच ही लाइक टू मेट विद पर्सन्स बट विद सम पर्टिकुलर source. Okay, so this is the entire chapter. I hope you completely understand it, and the things the question will be given to you as assignment. You have to do it in your fair notebook. Okay, thank you.